ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ دیوار پر گھڑی کی سوئیاں جیسے رک سی گئی تھیں۔ رائم کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ضد کی چمک تھی۔ زرلشتہ، تمہیں آخر کب سمجھ آئے گا کہ یہ جذبہ مذاق نہیں ہے؟ میں تمہیں چاہتا ہوں، دل سے، شدت سے، سچائی سے۔ رائم، تم مجھ سے 10 سال چھوٹے ہو۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، نہ ہی میرے اندر تمہارے لیے کوئی فیلنگز ہیں۔ رائم کے چہرے پر لمحہ بھر کو مسکراہٹ آئی اور پھر طنز میں بدل گئی۔ تو پھر کیوں ہر وقت میرے آس پاس رہتی ہو؟ کیوں میری ہر بات پر ہنستی ہو؟ کیوں میری فکر کرتی ہو؟ زرلشتہ نے خفگی سے رخ موڑا۔ میں تمہاری بہن کی دوست ہوں۔ تم میرے چھوٹے بھائی جیسے ہو۔ تمہاری کیئر کرنا میرا فرض ہے۔ رائم کا صبر ٹوٹ گیا۔ بس کرو یہ بھائی بہن کا ڈھونگ۔ میرے اندر محبت کی آگ لگا کر اب نیک بننے کا ناٹک مت کرو۔ تمہاری آنکھیں سب کہہ چکی ہیں۔ زرلشتہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مار دیا۔ حد میں رہو رائم۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل کا بوجھ آنسوؤں میں بہہ نکلا۔ وہ خود بخود رائم کے کندھے سے لگ گئی۔ رائم نے کان کے قریب سرگوشی کی۔ یہ پیار نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور اپنے ہاتھ آہستہ سے اس کی کمر پر رکھ دیے۔ زرلشتہ کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی جیسے ہوش لوٹ آیا ہو۔ رائم، مت چھوؤ مجھے۔ تم پاگل ہو گئے ہو۔ یہ سب غلط ہے۔ رائم نے ہلکی مگر بھاری آواز میں کہا۔ غلط صرف اتنا ہے کہ تم دل سے ماننے سے انکار کر رہی ہو۔ زرلشتہ کی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات وہ اپنی سوچوں کے پنجرے میں قید رہی۔ رائم پاگل ہے یا شاید میں کمزور ہو رہی ہوں؟ وہ خود سے الجھ رہی تھی۔ اسی دوران دروازہ کھلا۔ رائم کی بہن مائلہ مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ آپ تو پوری رات جاگی رہی ہیں۔ کیا ہوا زری آپی؟ زرلشتہ نے چونک کر خود کو سنبھالا۔ کچھ نہیں، بس نیند آ رہی تھی۔ مائلہ نے شرارت سے کہا۔ کہیں میرے بھائی کی باتوں نے تو نیند نہیں اڑا دی؟ زرلشتہ نے نظریں چرا لی۔ پاگل ہو تم، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن دل کے اندر ایک دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ دن کے وقت جب سب گھر کے کاموں میں مصروف تھے، رائم نے زرلشتہ کو لان میں روک لیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں تمہیں پانے کے لیے ہر حد پار کروں گا۔ تم بھاگ سکتی ہو مگر میرے دل سے نہیں نکل سکتی۔ تمہارے یہ ڈائلاگ مجھے متاثر نہیں کرتے۔ میں تم سے بڑی ہوں، سمجھدار ہوں، اور یہ سب رومانوی خواب صرف فلموں میں اچھے لگتے ہیں۔ رائم نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ محبت کبھی عمر سے نہیں ڈرتی زرلشتہ۔ تم کہو یا نہ کہو، تمہارے چہرے پر سب لکھا ہے۔ زرلشتہ نے رخ موڑا اور تیزی سے اندر چلی گئی، مگر اس کے دل میں کچھ ٹوٹا بھی تھا اور کچھ نیا جنم بھی لے رہا تھا۔ رات کو وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا واقعی میں اس سے نفرت کرتی ہوں؟ اس نے آئینے میں خود سے سوال کیا، لیکن آئینے نے جواب نہیں دیا، بس آنکھوں کی نمی نے سب کہہ دیا۔ صبح کی دھوپ نرم تھی، لیکن زرلشتہ کے اندر کا موسم کچھ بوجھل تھا۔ رات کی باتیں، رائم کی نظروں کی شدت اس کے کانوں میں اب بھی گونج رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کے شور کو دبا نہیں پا رہی تھی۔ آج گھر میں چھوٹے کزن کی سالگرہ تھی۔ سب مہمان جمع تھے۔ ہنسی کہکہوں سے ماحول گونج رہا تھا۔ زرلشتہ نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے کیک اور سجاوٹ کی ذمہ داری لے لی۔ زری آپی، تھوڑا سا ربن پکڑاؤ نا، مائلہ نے پکارا۔ زرلشتہ نے مسکراتے ہوئے ربن دیا، مگر دل کہیں اور تھا۔ پھر اچانک دروازے پر رائم داخل ہوا۔ سفید شرٹ، ہلکی داڑھی اور نظریں سیدھی زرلشتہ پر۔ زرلشتہ کی سانس رک گئی۔ واہ رائم بھائی، آج تو آپ ہیرو لگ رہے ہیں۔ رائم نے مسکرا کر کہا۔ ہیرو بننے کی کوشش تو کر رہا ہوں، مگر ہیروئن ناراض ہے۔ زرلشتہ نے تیزی سے نظریں ہٹا لی۔ یہ سب کیا مذاق ہے؟ اس نے خود سے بڑبڑایا۔ کیک کٹنے کے بعد سب لوگ ایک دوسرے کو خوش کر رہے تھے۔ اسی لمحے رائم نے گٹار اٹھایا۔ آج ایک گانا سناؤں گا،
मगर सुनने वालों में खास एक है। सब लोग हंसने लगे। माइला ने तालियां बजाईं और जरलश्ता के चेहरे का रंग बदल गया। गिटार के तारों से नरमी बही और राइम ने धीरे से गाया, तुमने कहा था फासला बेहतर है, मैंने कहा था मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। उसकी नजरें मुसलसल जरलश्ता पर जमी थी। जरलश्ता के दिल की धड़कन जैसे तेज हो गई। सब समझ गए थे कि गाना उसी के लिए है। गाना खत्म हुआ तो सबने दाद दी, मगर जरलश्ता एकदम उठकर वहां से चली गई। वो लॉन में खड़ी थी, हवा में हल्की खुनकी थी। पांव नीचे शबनम से भीग रहे थे, मगर दिमाग गर्म था। ये क्या कर रहा है राइम? पूरे घर के सामने मजाक बना दिया मेरा। तभी पीछे से आवाज आई। ये मजाक नहीं था, हकीकत थी। राइम वहां खड़ा था, गिटार कंधे पर लटकाए, आंखों में संजीदगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरे खानदान के सामने ऐसी हरकत। शर्म तो तब आनी चाहिए थी जब तुम मेरे एहसासात को झूठ कहकर नजरअंदाज कर रही थी। तुम बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं। ये उम्र और ये रिश्ते, ये सब मजाक नहीं है। मैं बच्चा नहीं हूं जरलश्ता, मैं वो मर्द हूं जो तुम्हें हर हाल में इज्जत से अपनाना चाहता है। जरलश्ता पीछे हटी। राइम बस करो, ये सब खत्म करो, तुम मेरी जिंदगी में फितने की तरह आ गए हो। राइम की आवाज भरा गई। मैं तुम्हारी जिंदगी का फितना नहीं, तुम्हारा करार बनना चाहता हूं। खामोशी छा गई। दूर से माइला उन्हें देख रही थी, मगर पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, हैरत थी। जरलश्ता ने खुद को मसरूफ रखने के लिए जॉब पर जाने का फैसला किया। वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। बच्चों के दरमियान वो खुद को महफूज महसूस करती थी, जैसे जिंदगी में कुछ सादा सा रह गया हो। लेकिन जैसे ही क्लास से निकली, दरवाजे के बाहर राइम खड़ा था, एक हाथ में फूल, दूसरे में एक लिफाफा। ये क्या ड्रामा है राइम? तुम मुझे हर जगह क्यों फॉलो कर रहे हो? ये ड्रामा नहीं, एहसास है। और ये खत शायद तुम्हारे दिल के करीब ले जाए। जरलश्ता ने फूल झटक दिए। तुम्हारी हर हरकत मुझे मजीद तुमसे दूर कर रही है। फिर भी तुमने खत नहीं फेंका। जरलश्ता ठुठक गई। वाकई वो खत अब भी उसके हाथ में था। रात को उसने खत खोला। लफ्जों में जज्बात की गर्मी थी, मगर लहजा बहुत सादा था। जरलश्ता, तुम कहती हो मैं छोटा हूं, मगर क्या मोहब्बत के लिए उम्र बड़ी होती है? मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जिंदगी बांटना चाहता हूं। अगर कभी तुम्हारे दिल ने हाँ कही, मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया रख दूंगा। राइम। जरलश्ता की आंखें नम हो गईं। ये लड़का दिल से चाहता है मुझे, मगर मैं खुद को क्यों रोक रही हूं? लेकिन अगले लम्हे अकल ने दिल को चुप करवा दिया। नहीं, ये गलत है। उसकी उम्र, उसका जुनून सब वक्ती है, मगर दिल वही जिद्दी बच्चा था जो मानने को तैयार नहीं था। सुबह की पहली रोशनी जरलश्ता के कमरे में फैली तो उसने थके हुए दिल से आंखें खोली। टेबल पर वही खत रखा था, वही लफ्ज जो रात भर उसके दिल में गूंजते रहे थे। जरलश्ता ने खत उठाया, कुछ लम्हे देखा, फिर आहिस्ता से दराज में बंद कर दिया। नहीं, ये जज्बा मुझे तबाह कर देगा। मैं किसी बच्चे के जुनून का हिस्सा नहीं बन सकती। उसने चादर ओढ़ी और किचन की तरफ बढ़ गई। लेकिन आज घर का माहौल कुछ अलग था। अम्मी और अब्बू के चेहरों पर अजीब सी चमक थी। किचन में मिठाई के डब्बे, सोफे पर नया सूट और अम्मी के हाथ में फोन। अम्मी, ये सब क्या है? बेटा, खुशखबरी है, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। जरलश्ता का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। क्या मतलब? कौन सा रिश्ता? साहिर का रिश्ता आया था, याद है? वो लंदन में जॉब करता है। तुम्हारी मंगनी अगले हफ्ते रख दी गई है। जरलश्ता खामोश हो गई। साहिर, वो उसका बचपन का क्लास फेलो था। नरम गुफ्तार, सुलझा हुआ, मगर अब इसके जहन में सिर्फ राइम की आंखें थीं, वो आंखें जो पिछली रात के अल्फाज से अब भी भरी हुई थी। शाम को राइम हस्बे मामूल लॉन में आया। जरलश्ता ने उसे देखकर अंदर जाने लगी, मगर माइला ने जोर से कहा, अरे भाई, सुना तुमने? जरी आपी की मंगनी तय हो गई। राइम के कदम जैसे जमीन में धंस गए। क्या? किससे? साहिर भाई से।
लंदन वाले, अगले हफ्ते फंक्शन है। राइम की आंखों के रंग बदल गए। उसने जरलश्ता की तरफ देखा और वो नजरें चुराकर अंदर चली गई। बस वो एक लम्हा था, मगर राइम के अंदर एक तूफान उठ चुका था। रात गए राइम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेज पर वही पड़ा गिटार जो कभी मोहब्बत के गीत सुनाता था अब खामोश था। राइम ने दीवार पर हाथ मारा और फिर आहिस्ता से कहा, तो ये अंजाम था मेरे प्यार का। मैं बच्चा था ना तुम्हारे लिए। तुम्हें लगा मेरा जज्बा वक्ती है। जरलश्ता, तुमने मेरी रूह छीन ली। अचानक उसके फोन पर पैगाम आया, कल मुझे स्कूल से लेने आओ, बात करनी है। ये जरलश्ता का मैसेज था। राइम के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में आंसू अब भी ठहरे थे। स्कूल के सामने जरलश्ता खड़ी थी। राइम बाइक पर आया, हेलमेट उतारा और संजीदगी से बोला, क्या बात करनी थी? मैं चाहती हूं तुम समझ जाओ, जो तुम महसूस करते हो वो गलत है। गलत? मोहब्बत भी कभी गलत होती है? राइम, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुमसे बड़ी हूं और अब मेरी मंगनी हो चुकी है। ये सब खत्म करो। तुम खत्म कर सकती हो तो कर दो, मगर मेरा दिल तुम्हारे हुक्म से नहीं चलेगा। तुम चाहो तो मैं दूर रहूंगा, मगर तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं। जरलश्ता की आंखों में नमी उतर आई। ऐसी बातें बंद करो, ये सिर्फ मुझे कमजोर कर रहा है। कमजोर तुम नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना सांस नहीं लेना जानता। जरलश्ता पलट गई, मगर जाते हुए उसके कानों में वही जुमला गूंज रहा था, मैं तुम्हारे बिना सांस लेना नहीं जानता। रोशनियों से सजा हुआ घर, मिठाई की खुशबू, तस्वीरों की चमक, सब कुछ मुकम्मल था, मगर जरलश्ता के चेहरे की चमक कहीं गुम थी। साहिर खुश अखलाकी से सबसे मिल रहा था, मगर जरलश्ता की आंखें कहीं राइम को तलाश कर रही थीं। बेटा जरा मुस्कुरा दो, तस्वीरें खींच रहे हैं। जरलश्ता ने मसनूई मुस्कुराहट दी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। माइला ने जाकर देखा तो राइम था। सबके चेहरे बदल गए। अम्मी ने घबराकर कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? राइम ने सबके सामने आकर कहा, मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं। महफिल में खामोशी छा गई। मैं जानता हूं ये दिन तुम्हारे लिए खास है जरलश्ता, मगर मेरी जिंदगी का हर दिन तुम्हारे बगैर अधूरा है। मैं दुआओं में तुम्हारी खुशी मांगूंगा, चाहे वो मेरे बगैर ही क्यों ना हो। ये कहकर वो पलटा और दरवाजे से निकल गया। जरलश्ता की आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने कुछ नहीं कहा। मंगनी खत्म हो गई, सब सो गए, मगर जरलश्ता जागती रही। बाहर चांदनी थी, मगर दिल में अंधेरा। क्या मैं वाकई खुश हूं या सिर्फ सबको खुश देखने का दिखावा कर रही हूं? दूर से फोन बजा। राइम का मैसेज, बस ये जान लो तुम जहां भी रहो मेरा दिल वहीं धड़कता है। जरलश्ता ने मैसेज देखा, आंखों में आंसू उतरे, मगर उसने जवाब नहीं दिया। सुबह के खून हवा में जरलश्ता लॉन के दरख्तों के नीचे बैठी थी। आंखों के नीचे हल्के, चेहरे पर थकन। रात भर वो सो नहीं सकी थी। राइम के वो आखिरी अल्फाज, मैं दुआओं में तुम्हारी खुशी मांगूंगा, चाहे वो मेरे बगैर ही क्यों ना हो, उसके दिल में जैसे नक्श बन गए थे। अम्मी ने आकर कंधे पर हाथ रखा। जरलश्ता बेटा, साहिर कल वापस जा रहा है। परसों तुम्हारी मंगनी की तस्वीर लेकर उसके घर वाले जाएंगे। खुश हो ना? जरलश्ता ने मसनूई मुस्कुराहट दी। जी अम्मी, खुश हूं, मगर दिल के अंदर एक अजीब खला फैल गया। साहिर 2 दिन से ज्यादा रुका नहीं, मगर इन 2 दिनों में जरलश्ता ने उसकी बातों में एक अजीब सी सख्ती महसूस की। वो मगरूर, खुद पसंद और बात बात पर गुस्सा करने वाला शख्स था। एक शाम वो दोनों सोफे पर बैठे बात कर रहे थे। जरलश्ता, शादी के बाद तुम जॉब छोड़ दोगी ना? क्यों? मैं बच्चों को पढ़ाती हूं, ये मेरा शौक है। शौक? मेरी बीवी को शौक नहीं, मेरे कहने पर चलना होगा। वहां लंदन में घर के काम खुद करने होंगे, कोई नौकर नहीं होगा। जरलश्ता के चेहरे पर उलझन उभर आई। साहिर, मैंने कभी अपनी जिंदगी किसी के हुक्म पर नहीं गुजारी। फिर मैं तुम्हें अपनी आज़ादी से ज्यादा मेरा साथ नहीं चाहिए? शायद तुम अभी बच्ची हो। यह सुनकर जरलश्ता का दिल जैसे किसी ने चीर दिया।
क्या वो वाकई इतनी गलत थी, या ये वही नरमी थी जो राइम में थी और जिसे वो नज़रअंदाज कर गई थी। उस रात बारिश होने लगी। खिड़की के पार जल थल था, मगर ज़रलश्ता के दिल में तूफान। फ़ोन बजा तो माइला थी। जरी आपी, राइम भाई कल लाहौर जा रहे हैं, मुस्तकिल रहने के लिए। ज़रलश्ता का हाथ लरज़ गया। क्या? क्यों? पता नहीं, बस इतना कहा कि यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा। ज़रलश्ता ने फ़ोन बंद किया, मगर आंखों से आंसू बह निकले। बारिश के कतरों में मिलते हुए वो आंसू जैसे खुद भी कहानी बन गए। मैंने खुद अपने हाथों से खो दिया उसे, जो मुझे लफ्ज़ों से संभाल रहा था। ज़रलश्ता साहिर के साथ मार्केट गई। साहिर हर बात में तनकीद कर रहा था। ये कलर ठीक नहीं, ये कपड़ा पुराना फैशन है, तुम्हें स्टाइल नहीं आता। ज़रलश्ता खामोशी से सुनती रही। तभी एक स्टोर के आईने में उसे राइम नजर आया। वो शॉल खरीद रहा था, लेकिन आंखों में खालीपन था। दोनों की नजरें मिली। लम्हा ठहर गया। खैरियत से रहना जरी। ज़रलश्ता ने नजरें चुरा ली। साहिर ने कुछ महसूस किया। कौन था वो? जानती हो उसे? नहीं, एक जाना पहचाना चेहरा था बस। साहिर ने तंजिया मुस्कुराहट दी। तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही थी। अगली सुबह राइम के घर खामोशी थी। बैग तैयार, माँ की आंखों में आंसू। माइला दरवाजे के पास खड़ी थी। बेटा, जाने से पहले ज़रलश्ता से मिल लो। राइम ने हल्का सा सर हिलाया। नहीं अम्मी, अब मिलने का कोई मतलब नहीं। कुछ बातें वक्त के साथ ही ख़त्म होती हैं। गाड़ी गेट से निकल गई। ज़रलश्ता खिड़की के पास खड़ी थी। हाथ हिलाया भी नहीं, बस खामोशी से देखती रही। एक हफ्ता गुजर गया। साहिर वापस लंदन जा चुका था। ज़रलश्ता अब भी उसकी बातों में उलझी हुई थी। फिर एक दिन पोस्टमैन आया। एक खत, बग़ैर नाम के, मगर तहरीर पहचानी हुई। मैं जा रहा हूँ, मगर दिल के एक हिस्से में तुम्हारा अक्स छोड़े जा रहा हूँ। शायद तुम कभी समझो कि मोहब्बत उम्र नहीं देखती, सिर्फ दिल देखती है। राइम। ज़रलश्ता की आंखों से आंसू गिरे। राइम, तुम जीत गए। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे गरूर को हरा दिया। ज़रलश्ता सजदे में थी। लबों पर दुआ थी और आंखों में नमी। या अल्लाह, अगर वो सच्चा है तो उसे मेरी जिंदगी में लौटा दे। मैं अब खुद को झूठ नहीं कह सकती। बारिश के दिन ख़त्म हो चुके थे। शहर की फ़िज़ा में अजीब सा सुकून था, मगर ज़रलश्ता के दिल में तूफ़ान अभी भी बरपा था। राइम की रवानगी के बाद वो खामोश हो गई थी, जैसे लफ्ज़ों की दुनिया में रहने वाली लड़की अब खुद एक खामोश कहानी बन चुकी थी। अम्मी अक्सर पूछती, क्या बात है जरी, तुम इतनी चुप क्यों हो गई हो? और वो बस इतना कहकर बात बदल देती, बस अम्मी, थोड़ी थकन है। एक दिन साहिर का फ़ोन आया। ज़रलश्ता, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हें भेजे हैं, देख लेना। ज़रलश्ता ने ख़त खोला। कागजात देकर वो साकित रह गई। वो शादी के बाद उसके नाम पर जायदाद या तहफ़्फ़ुज़ के कागज़ नहीं थे, बल्कि एक कानूनी मुआहदा था जिसमें लिखा था कि शादी के बाद ज़रलश्ता तमाम माली, ज़ाती और समाजी फ़ैसलों में शौहर के ताबे रहेगी। उसके नीचे साहिर के दस्तखत और तारीख दर्ज थी। ज़रलश्ता के हाथ कांपने लगे। ये वो मोहब्बत नहीं थी जो उसने ख्वाबों में देखी थी। ये तो एक सौदा लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी आज़ादी को बेचने की कोशिश की हो। उसी लम्हे उसके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। एक वीडियो। भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन आवाज़ साफ पहचानी जा सकती थी। साहिर की। यार, लंदन की गोरियां कहाँ और ये पाकिस्तानी लड़कियां कहाँ? बस अम्मी के कहने पर रिश्ता कर रहा हूँ। शादी के बाद तो वी विल सी। ज़रलश्ता की सांसें जैसे रुक गईं। वो शख्स जो उसके सामने मोहब्बत के दावे कर रहा था, पीछे मजाक बना रहा था। उस रात वो देर तक जागती रही। अपनी डायरी के सफ़े पर कुछ लिखा। मैंने हमेशा दूसरों के कहने पर फैसले किए, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करूँगी, चाहे सारी दुनिया खिलाफ हो। अगली सुबह वो साहिर से बात करने के इरादे से वीडियो कॉल पर आई। साहिर सामने बैठा था, हाथ में कॉफ़ी का मग और चेहरे पर वही गरूर। ये क्या है साहिर? ये मुआहदा,
ये वीडियो, तुम्हें लगता है मैं कोई चीज हूं जो तुम खरीद सकते हो? प्यारे लफ्ज छोड़ो ज़रलश्ता, तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है, लंदन, इज्जत, नाम, और ये सब मेरी शराइत पर होगा, वरना दरवाज़ा खुला है। ज़रलश्ता ने पहली बार मजबूत लहजे में कहा। हाँ, दरवाज़ा खुला है और मैं वही रास्ता चुनूंगी जहां खुद का एहतराम जिंदा रहता है। कॉल बंद करके उसने सुकून की एक लंबी सांस ली। यूं लगा जैसे बरसों बाद वो अपनी जिंदगी की मालिक बनी हो। 2 दिन बाद वो एक NGO में बच्चों के प्रोग्राम के लिए गई। वहां एक स्पॉन्सर आया, लंबा, संजीदा, मगर मुस्कुराहट में वही सुकून। ज़रलश्ता के कदम ठहर गए। वो पहले से बदल चुका था। दाढ़ी हल्की, चेहरे पर वकार, मगर आंखों में वही नरमी जो कभी उसके दिल को हिला देती थी। लगता है वक्त ने हमें फिर एक ही रास्ते पर ला खड़ा किया है। ज़रलश्ता नजरें झुकाए हुए बोली। शायद किस्मत को अभी हमारा हिसाब पूरा करना था। प्रोग्राम के बाद वो दोनों कैफे में बैठे। राइम ने आहिस्ता से कहा, मैंने सोचा था कि चला जाऊंगा तो तुम भूल जाओगी, मगर मैं खुद को भूल नहीं सका। तुमने हमेशा दूसरों के लिए जिया ज़री, कभी अपने लिए जीना सीखो। ज़रलश्ता की आंखों से एक आंसू फिसला। मैंने देर की राइम, लेकिन अब शायद मैं तैयार हूं। राइम ने चाय का कप सामने रखा। तो फिर नई कहानी शुरू करें, इस बार सच्चाई से। ज़रलश्ता ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। हाँ, इस बार सच्चाई के साथ, बगैर किसी दिखावे के। कुछ दिन बाद साहिर के घर वालों ने खुद रिश्ता वापस ले लिया। वजह मालूम नहीं थी, मगर ज़रलश्ता ने सजदे में शुक्र अदा किया। राइम ने उसके स्कूल के लिए फंडिंग का बंदोबस्त किया और दोनों ने एक नया मंसूबा शुरू किया, आवाज़े दिल, जहां यतीम बच्चों को तालीम, आर्ट और हौसला दिया जाता था। रात को जब वो स्कूल के सहन में बैठे थे, चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। पता है ज़री, कभी कभी खुदा वो रास्ता बंद कर देता है जो हम चाहते हैं, ताकि वो हमें उस मंजिल तक ले जाए जो हम हक रखते हैं। ज़रलश्ता ने सर उसके कंधे पर रखा और धीमी आवाज में कहा, शायद अब मेरी दुआ पूरी हुई है। सच्चाई, सुकून और मोहब्बत एक साथ। ज़रलश्ता ने कई दिनों बाद खुद को आईने में गौर से देखा। चेहरे पर अब वो थकन नहीं थी जो कभी उसके अंदर की खामोशी का अक्स बन गई थी। अब निगाहों में सुकून था, जैसे दिल को अपनी सिमत मिल गई हो। राइम का असर उसके हर लम्हे में घुलने लगा था। कभी वो उसके लफ्ज़ों में छुपा एहसास समझने की कोशिश करती, कभी उसकी खामोशी में छुपे सवालों के जवाब ढूंढती। स्कूल में बच्चों का शोर गूंज रहा था, छोटे छोटे कदम, कह कहे, मासूम बातें। ज़रलश्ता उन बच्चों के दरमियान रहकर जैसे अपनी अधूरी कहानी को रंग दे रही थी। इसी दौरान राइम अंदर आया। हाथ में छोटा सा पौधा था। ये लगा दो, हर नया दिन इसके साथ उगेगा, जैसे हमारी मेहनत, जैसे हमारा ख्वाब। ज़रलश्ता ने मुस्कुराकर पौधा ले लिया। तुम्हें पता है राइम, मैंने कभी किसी को इतने खलूस से कुछ देते नहीं देखा। मोहब्बत खुलूस के बगैर तो अधूरी होती है। मैंने तुम्हें हमेशा अपने दिल के सच के साथ चाहा है, बस शायद वक्त गलत था, अब वक्त ठीक लग रहा है। शायद पहली बार दिल मुतमईन है कि मैं किसी दिखावे नहीं, एहसास के करीब हूं। शाम को हल्की बारिश होने लगी। ज़रलश्ता स्कूल के बरामदे में खड़ी थी जब राइम छतरी ले आया और उसके कंधे पर हल्की सी बूंद गिरी। बारिश हमेशा कुछ नया लाती है, कभी यादें, कभी माफ़ी, और कभी कोई पुराना दुख धो देती है। फिर आज हम अपने दुख धो देते हैं, सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं, वो गलतियां, वो दर्द, वो फासला। ज़रलश्ता ने आहिस्तगी से सर हिलाया। हाँ, सब खत्म, सिर्फ नया आगाज। दोनों चुपचाप बारिश में खड़े रहे। शायद लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी, दिलों ने सब कह दिया था। कुछ दिन बाद राइम ने कहा, अम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं ज़री। ज़रलश्ता के कदम रुक गए। मैं? मगर क्या वो मुझे कबूल करेंगी? राइम ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। तुम वो हो जिसने मेरे दिल को अमन दिया है, अम्मी को भी तुम्हारा सच पसंद आएगा। ज़रलश्ता जब राइम के घर पहुंची
दरवाजे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ राइम की अम्मी खड़ी थी। बेटा, तुम वो लड़की हो ना जिसके लिए मेरा बेटा दिल हार गया था? ज़रलश्ता के चेहरे पर शर्म और खौफ दोनों थे। जी, लेकिन मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि। अम्मी ने बात काट दी। काबिल होने की बात नहीं, सच्चाई की होती है। मैंने राइम की आंखों में तुम्हारे लिए जो इज्जत देखी है वही काफ़ी है। ज़रलश्ता की आंखों में नमी आ गई। मैं वादा करती हूँ कभी इसका दिल नहीं तोड़ूंगी। अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। और वो वादा मेरा है कि तुम अकेली नहीं रहोगी। रात को राइम ने ज़रलश्ता को मैसेज किया। जब तुम अम्मी के साथ बैठी थी ना, मैं पहली बार डर गया था। डर गए कहीं तुम चली ना जाओ, मगर तुमने मेरी ज़िंदगी में रहने का फैसला कर लिया। शुक्रिया ज़री, ज़रलश्ता ने जवाब में लिखा। मैं नहीं जानती कि मोहब्बत की तारीफ़ क्या है, मगर तुम्हारे साथ सुकून है। शायद यही मोहब्बत है। चंद दिन बाद स्कूल के सहन में सालाना तकरीब थी। बच्चों ने नज़म पढ़नी थी। ज़रलश्ता के हाथ में माइक था, लेकिन दिल की धड़कन बेकाबू थी। उसने बोलना शुरू किया। हम सब जिंदगी में किसी न किसी का सहारा बनते हैं, कभी किसी बच्चे के लिए, कभी किसी ख्वाब के लिए, और कभी किसी दिल के लिए जो हमें मुकम्मल कर देता है। सामने बैठा राइम खामोश मुस्कुरा रहा था। वो जान गया था ये अल्फाज उसी के लिए हैं। महफिल के बाद सब बच्चों के बीच राइम ने आहिस्तगी से उसके करीब आकर कहा, मैं कभी शायरी नहीं समझता था, लेकिन आज लगता है तुम खुद एक शेर बन गई हो ज़री। ज़रलश्ता की मुस्कुराहट गहरी हो गई। और तुम उस शेर का मतलब? वक्त ने जैसे रफ्तार बदल ली थी। ज़रलश्ता और राइम की ज़िंदगी अब पुरसकून हो चुकी थी। स्कूल का काम, बच्चों की हंसी, शाम की चाय, सब कुछ जैसे अपनी जगह पर दुरुस्त बैठ गया था। लेकिन किस्मत कब सीधी रहती है। एक दिन अचानक साहिर वापस आ गया। वही साहिर जिसका चेहरा कभी धोखे की अलामत बन गया था। ज़रलश्ता एक सेमिनार में शिरकत के लिए शहर के कल्चरल सेंटर गई थी। हॉल के दरवाजे पर एक मानूस आवाज़ सुनाई दी। कितना बदल गई हो तुम ज़रलश्ता। ज़रलश्ता का दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसने पलट कर देखा। साहिर सफ़ेद शर्ट में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी लंदन की गोरियां पसंद थी ना। जिंदगी बदल जाती है ज़री। पता चला कि असली सुकून उन चेहरों में नहीं होता जो खूबसूरत हों, बल्कि उनमें होता है जो सच्चे हों। और तुम हमेशा सच्ची थी। ज़रलश्ता ने नज़रें झुकाकर कहा, तुम्हें अपनी सच्चाई तब याद आती है जब सब ख़त्म हो जाता है साहिर। अब मैं वो ज़रलश्ता नहीं जो कभी तुम्हारे झूठों पर यकीन करती थी। उसी लम्हे राइम हॉल के अंदर आया। ज़रलश्ता ने उसे देखकर सुकून का सांस लिया, मगर साहिर का चेहरा बदल गया। सब खैरियत है ज़री? हाँ, ये पुराने ज़माने का कोई भूला चेहरा है जो शायद गलत दरवाजे पर आ गया है। तो ये है नया साथी, वही लड़का जो कभी तुमसे 10 साल छोटा था। बहुत खूब ज़रलश्ता, तुम्हारे इंतखाब तो वक्त के साथ बदलने लगे हैं। ज़बान संभाल कर बात करो साहिर, तुम्हें शायद अभी तक इज्जत देना नहीं आया। साहिर हंसकर बोला, इज्जत तो उन्हें दी जाती है जो रिश्तों के काबिल हों। किसी के कंधे पर सर रखकर दूसरी तरफ ना देखें। ज़रलश्ता ने उसकी बात काट दी। काफ़ी बोल लिया तुमने, अब तुम्हारा बोलना नहीं, मेरा खामोश रहना तुम्हारे लिए जवाब है। राइम ने उसका हाथ थामा और हॉल से बाहर ले गया। उस रात ज़रलश्ता बहुत देर तक छत पर बैठी रही। हवा में हल्की सी नमी थी, दिल में अजीब सा बोझ, जैसे माजी दोबारा दरवाज़ा खटखटा रहा हो। राइम आहिस्ता से करीब आया। तुम ठीक हो ज़री? ज़रलश्ता ने आहिस्तगी से कहा, मैं ठीक हूँ, बस कभी कभी लगता है कि पुरानी बातें दिल के किसी कोने में रह जाती हैं, चाहो तो भी मिटती नहीं। मैं उन बातों को तुमसे छीन नहीं सकता, लेकिन इतना वादा करता हूँ, अब कोई याद तुम्हें तकलीफ नहीं देगी। जब तक मैं हूं, तुम्हारा माजी सिर्फ माजी रहेगा। ज़रलश्ता ने पहली बार आंखों में नमी के साथ मुस्कुरा कर कहा, और मेरा हाल तुम हो राइम। कुछ दिन बाद ज़रलश्ता के स्कूल में एक लीगल नोटिस आया। भेजने वाला साहिर अहमद। नोटिस में लिखा था स्कूल की ज़मीन पर उसके ख़ानदान का हक है।
اگر زرلشتہ وہاں سے ادارہ ہٹاتی نہیں تو کیس درج کیا جائے گا۔ زرلشتہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیا ہے رائم؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ رائم نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ کیونکہ وہ تمہیں ہارنے نہیں دینا چاہتا زری۔ اسے لگتا ہے کہ تمہاری کامیابی اس کے غرور کے خلاف ہے، لیکن اب کھیل اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ایک ہفتے بعد عدالت میں سماعت ہوئی۔ زرلشتہ نے رائم کے ساتھ قدم قدم چل کر ہمت دکھائی۔ ظاہر کے جھوٹے ثبوت سامنے آتے ہی جج نے کیس خارج کر دیا۔ زرلشتہ نے شکر کے آنسوؤں کے ساتھ سر جھکا دیا، اور جب باہر نکلی تو رائم کے سامنے رک گئی۔ میں ہمیشہ دوسروں کے سہارے ڈھونڈتی رہی، لیکن آج سمجھ آئی کہ اصل سہارا وہ ہوتا ہے جو تمہیں گرنے ہی نہیں دیتا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا رائم۔ رائم نے مسکرا کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا زری، بس تمہیں وہ دیکھنے میں مدد دی جو تم خود میں بھول گئی تھی۔ تمہاری ہمت، تمہارا یقین۔ عدالت سے واپسی پر دونوں خاموش کار میں بیٹھے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف درخت، سورج کی نرم روشنی، اور درمیان میں دو لوگ جنہیں اب اپنی سمت مل چکی تھی۔ کبھی سوچا تھا کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے؟ نہیں، میں نے تو ہمیشہ خواب ٹوٹتے دیکھے، مگر تم نے ان خوابوں کو حقیقت بنایا۔ رائم نے دھیرے سے کہا، اب ایک نیا خواب دیکھتے ہیں زری، ہم دونوں کا، ایک چھوٹے سے گھر کا، جہاں محبت کی ہوا کبھی بند نہ ہو۔ زرلشتہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائیں۔ شاید اب وقت ہے رائم، میرا دل اب کسی وعدے سے نہیں ڈرتا۔ رائم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ پھر وعدہ کرو اب کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ زرلشتہ نے آہستہ سے جواب دیا، یہ وعدہ نہیں، دعا ہے، اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی جب نیت سچی ہو۔ چاندنی رات تھی، مگر زرلشتہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسکول کا کام ختم ہو چکا تھا۔ رائم نے کہا تھا کہ شام 6 بجے تیار رہنا، میں تمہیں کسی خاص جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ زرلشتہ نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ سادہ سفید شلوار قمیض، ہلکا سا لپ گلاس اور کانوں میں چھوٹے سے موتیوں کے جھمکے۔ کچھ زیادہ تو نہیں لگ رہی؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر خود ہی مسکرا دی۔ رائم گاڑی لے کر آیا۔ چہرے پر معمول سے زیادہ سکون تھا۔ آج صرف 2 باتیں یاد رکھنا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی فکر، بس سفر کا لطف لو۔ زرلشتہ نے الجھ کر پوچھا، کہیں تو مجھے پہاڑوں پر چھوڑنے تو نہیں جا رہے؟ رائم نے ہنستے ہوئے کہا، اتنا ظالم نہیں ہوں، اگر چھوڑوں گا بھی تو اپنے دل میں۔ زرلشتہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ گاڑی شہر سے باہر ایک پرانی وادی کی طرف مڑ گئی۔ راستے کے دونوں طرف دیودار کے درخت، ہوا میں پگھلے پھولوں کی خوشبو، اور آگے ایک چھوٹی سی وادی میں لکڑی کا خوبصورت جھونپڑا۔ زرلشتہ حیرانی سے بولی، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، جیسے کسی کہانی کا منظر ہو۔ رائم نے آہستگی سے کہا، یہ کہانی تمہاری ہے، میں نے ہر اینٹ خود رکھی ہے۔ یہ جگہ آواز دل، اسکول کا دوسرا کیمپس بننے والی ہے، جہاں صرف وہ بچے پڑھیں گے جنہیں دنیا نے کبھی چپ کروا دیا تھا۔ زرلشتہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رائم، تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ ہمارے لیے زری۔ محبت کا مطلب صرف ایک شخص نہیں ہوتا۔ محبت وہ جذبہ ہے جو دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی محبت کو کسی مقصد سے جوڑیں۔ جھونپڑی کے اندر سینکڑوں شمعیں جل رہی تھیں۔ ہر شمع کے نیچے ایک کارڈ رکھا تھا، کسی بچے کا نام، ایک خواب، ایک چھوٹا سا وعدہ۔ زرلشتہ نے آہستگی سے پوچھا، یہ سب کس نے لکھے؟ رائم نے مسکرا کر کہا، میں نے نہیں، وہ بچوں نے لکھے ہیں جنہیں تم نے امید دی۔ میں نے بس ان امیدوں کو روشنی دی ہے۔ زرلشتہ خاموشی سے آگے بڑھی اور پھر پلٹ کر رائم کی طرف دیکھا۔ رائم، تمہارے ساتھ رہنا مجھے خود سے ملنے جیسا لگتا ہے۔ تم صرف میرا پیار نہیں، تم میری پہچان ہو۔ رائم نے قریب آ کر کہا، اور تم میری مکمل دعا ہو زری، وہ دعا جسے مانگنے سے پہلے خدا نے قبول کر لیا۔ رائم نے جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی۔ کوئی مصنوعی چمک نہیں، بس ایک سادہ سا نگ۔ یہ سونا نہیں، وعدہ ہے کہ اب کوئی لمحہ تمہیں اکیلا نہیں کرے گا۔ کیا تم میرا ہم سفر بنو گی زندگی بھر کے لیے؟ زرلشتہ کی آنکھوں میں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔
मैं तो पहले ही तुम्हारी थी राइम, बस वक्त को समझ आने में देर लगी। राइम ने अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी और हवा में जैसे दुआओं की खुशबू फैल गई। रात गहरी हो गई थी। दोनों वादी के किनारे बैठे आसमान के सितारों को देख रहे थे। पता है, कभी लगता था कि मोहब्बत ख्वाब है, लेकिन अब एहसास होता है कि ख्वाब तो बस आगाज था। मोहब्बत तो वो हकीकत है जो तुम्हारे साथ जी जा रही हूं। और मैंने हमेशा माना है कि खुदा मोहब्बत को उन लोगों के दिलों में डालता है जो टूट कर सच्चे होते हैं। तुम सच्ची हो ज़री, इसलिए खुदा ने तुम्हें मेरी जिंदगी में लिखा। हल्की हवा चली, शमें थरकने लगी और उनके बीच एक खामोश दुआ थी जिसमें वादा था हमेशा के साथ रहने का। रात गहरी हो चुकी थी, मगर ज़रलश्ता की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बालकनी में खड़ी चांद को तक रही थी, जैसे उसकी रोशनी में अपने दिल का सुकून तलाश कर रही हो। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों को चेहरे पर बिखेर रहे थे और अंदर से एक अनजाना सा इज़्तिराब उभर रहा था। आखिर राइम इतना बदल क्यों गया है? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। कल तक जो लड़का उसके सामने शर्माता था, आज आंखों में आग लिए बात करता है। ये तब्दीली उसे खौफजदा भी करती थी और कहीं न कहीं उसके दिल की धड़कनों को भी बेकाबू कर देती थी। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ज़रलश्ता ने चौंक कर पलट कर देखा। कौन? दरवाजे के पार से राइम की मध्यम आवाज आई। मैं हूं। वो एक लम्हा तजब्जुब में रही, मगर फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। राइम सामने खड़ा था, चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में वही शिद्दत। तुम अभी तक जाग रहे हो? ज़रलश्ता ने नजरें चुराते हुए पूछा। नींद आ ही नहीं रही, तुम्हारे बगैर नींद कैसे आए? राइम के लहजे में अजीब सा दर्द था। ज़रलश्ता ने फौरन रुख फेर लिया। राइम, हमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तुम्हें एहसास है हम कहाँ जा रहे हैं? राइम चंद कदम आगे बढ़ा, उसके करीब आया। मुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं। तुमसे दूर जाना मुमकिन नहीं। जितना तुम रोकती हो उतना ही मैं तुम्हारे करीब आने की ख्वाहिश में जलता हूं। बस राइम, ज़रलश्ता ने सख्त लहजे में कहा, मगर आवाज़ कांप रही थी। ये जो तुम्हारे दिल में एहसास है ना, वो वक्ती है। कुछ साल बाद तुम खुद हंसोगे अपने आँच पर। राइम हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट दुख से भरी थी। तुम समझती हो ये वक्ती है, तो फिर ये क्यों है कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिलता है और तुम्हारे रोने से सीने में आग लगती है? ये वक्ती नहीं ज़रलश्ता, ये वो एहसास है जो उम्र भर नहीं बुझता। ज़रलश्ता ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो सच बोल रही थी। अगर ये सच है तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारा? तुम तो मेरी जिंदगी हो। राइम ने आहिस्ता से कहा। मेरी दुनिया की हर सुबह तुमसे शुरू होती है और हर रात तुम्हारे ख्याल पर ख़त्म। ज़रलश्ता ने दिल थाम लिया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज गुम हो गए। राइम ने कदम आगे बढ़ाया, मगर ज़रलश्ता पीछे हट गई। नहीं राइम, ये सब गलत है। तुम मुझसे छोटे हो और लोग बातें करेंगे। राइम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। लोग हमेशा बातें करते हैं ज़रलश्ता, लेकिन वो कभी किसी का दर्द नहीं समझते। ज़रलश्ता की आंखें नम हो गईं। मुझे डर लगता है, राइम ने नरमी से कहा। मुझसे नहीं, खुद से डर रही हो, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारे दिल में भी वही आग है जो मेरे अंदर है। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। फिर ज़रलश्ता ने धीरे से कहा, जाओ राइम, आज नहीं प्लीज़। राइम ने उसकी आंखों में आखिरी बार देखा और दरवाजे से निकलने से पहले आहिस्ता से बोला, ठीक है, आज नहीं, लेकिन एक दिन तुम खुद मान लोगी कि यह एहसास सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। दरवाज़ा बंद हुआ। ज़रलश्ता टूटकर कुर्सी पर बैठ गई। दिल में एक ही बात गूंज रही थी, काश ये सब इतना आसान ना होता जितना दिखाई देता है। सुबह का सूरज ज़रलश्ता के कमरे की खिड़की से अंदर आ रहा था। रात की बेचैनी अभी भी उसके चेहरे पर लिखी थी, आंखों के नीचे हल्के और दिल में एक अनजाना सा बोझ। काश मैं राइम को समझा सकती कि ये सब इतना आसान नहीं। उसने ज़ेरे लब कहा और आईने के सामने आकर खुद को देखा। उसी लम्हे नीचे से राइम की हंसी की आवाज़ आई। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हल्की सी शोखी, मगर लहजे में अजीब ठहराव था।
ज़रलश्ता के दिल में एक चुभन सी उठी। ये कैसे बदल गया इतनी जल्दी? कल रात तो आंखों में तूफान था और आज ऐसे हंस रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो नीचे आई तो राइम लॉन में बैठा कॉफी पी रहा था। उसे देखकर राइम ने मुस्कुराकर कहा, सुबह बखैर ज़रलश्ता। सुबह बखैर, उसने मुख्तसर जवाब दिया। कॉफी पियोगी? नहीं शुक्रिया। राइम ने नजर उठाई। तुम आज भी नाराज हो? मैं नाराज नहीं, बस उलझी हुई हूं। उलझाव भी तो मोहब्बत का पहला इशारा होता है ना? राइम ने आंखों में शोखी के साथ कहा। ज़रलश्ता ने गहरा सांस लिया। राइम प्लीज, ये बातें खत्म करो। मैं नहीं चाहती कि ये सब मजीद पेचीदा हो। राइम ने कप मेज पर रखा और संजीदा लहजे में बोला, तुम चाहो या ना चाहो, हकीकत यह है कि तुम भी बदल गई हो। तुम्हारे लहजे में वो सख्ती नहीं रही। तुम्हारे आंसू अब मेरे नाम के साथ बहते हैं। ज़रलश्ता ने नजरें झुका ली। राइम, तुम मेरी इज्जत करते हो ना? इज्जत? वो मुस्कुराकर बोला, मोहब्बत में इज्जत सबसे पहले आती है। मैं तुम्हें चाहता हूं, मगर तुम्हारी हदों की इज्जत करता हूं। फिर प्लीज कुछ फासला रखो। वक्त को फैसला करने दो कि हम कहां खड़े हैं। राइम ने आहिस्ता से सर हिलाया। अगर वक्त फैसला करेगा तो याद रखना, वो मेरे हक में फैसला देगा, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं। ज़रलश्ता के लब कांप गए, मगर वो खामोश रही। राइम उठा और उसके करीब आकर बोला, मैं तुमसे वादा करता हूं, अब तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम खुद एक दिन आओगी मेरे पास अपने दिल की सच्चाई के साथ। वो ये कहकर चला गया और ज़रलश्ता देर तक वहीं खड़ी रह गई। हवा में राइम की बातों की गूंज अभी बाकी थी। दिन गुजरते गए। राइम ने वाकई फासला रखा। वो अब उसके सामने आता तो अदब से बात करता, हंसी में तलखी नहीं रहती थी। ज़रलश्ता हैरान थी। क्या ये मोहब्बत हार मान गई या ये कोई नई जंग की तैयारी है? एक शाम जब आसमान पर सुर्खी फैल रही थी, ज़रलश्ता छत पर खड़ी चाय पी रही थी। राइम नीचे बाग में किसी बच्चे के साथ खेल रहा था। बच्चे के हंसने पर वो खुद बेख्तियार मुस्कुरा उठी। काश ये नफरत खत्म हो जाए, दिल ने कहा। फिर अचानक उसके फोन पर पैगाम आया, मैं कल शहर छोड़ रहा हूं, कुछ वक्त चाहिए खुद से मिलने के लिए। दुआ करना मैं वापस आऊं तो वो शख्स बन सकूं जो तुम्हारा हो सके। राइम। ज़रलश्ता का हाथ कांप गया। शहर छोड़ रहा है? एक पल को लगा जैसे सांस रुक गई हो। वो दौड़कर नीचे आई, मगर राइम जा चुका था। लॉन में सिर्फ उसके खाली कप और एक छोटा सा नोट पड़ा था। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस इंतज़ार बदल जाता है। ज़रलश्ता के लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट आई, मगर आंखों से आंसू बह निकले। क्या वाकई मोहब्बत इंतज़ार बन सकती है? वो आसमान की तरफ देखने लगी। शायद जवाब वहीं कहीं था। 6 महीने गुजर गए थे। वक्त की रफ्तार ने सब कुछ बदल दिया था, सिवाय एक एहसास के। ज़रलश्ता पहले जैसी नहीं रही थी। चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में कहीं न कहीं वो खला मौजूद था जो राइम की गैर मौजूदगी ने पैदा किया था। राइम के जाने के बाद उसने खुद को मसरूफ कर लिया था, घर, ऑफिस और अपने ख्वाब। लेकिन दिल के कोने में वो खत, वो चंद अल्फाज अब भी सांस ले रहे थे। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस इंतज़ार बदल जाता है। एक शाम वो बालकनी में खड़ी सूरज को डूबते देख रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नौकर ने आकर बताया, बीबी जी, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। कहता है पुराना दोस्त हूं। नाम पूछा? कहता है खुद पहचान लेंगी। ज़रलश्ता के कदम जैसे रुक गए। दिल ने एक लम्हे को धड़कना भूल दिया। क्या ये वही हो सकता है? वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम के साथ दिल की रफ्तार बढ़ती गई। दरवाज़ा खुला। सामने वही कद, वही आंखें, वही खामोशी। वो कुछ लम्हे यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। हवा जैसे थम गई थी। फिर ज़रलश्ता ने बमुश्किल लब हिलाए। वापस आ गए? राइम ने मुस्कुराकर कहा, मैं गया ही कब था? तुम्हारे ख्यालों में तो रोज़ तुम्हारे आसपास ही रहता था। तुम बदल गए हो। हाँ शायद, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। क्या? तुम्हारे नाम की मोहब्बत। ज़रलश्ता के होंठ कांपे। तुम्हें यकीन है, इतने महीने, इतनी खामोशी के बाद भी? राइम ने नरमी से कहा, मोहब्बत खामोशी से भी जीतती है ज़रलश्ता।
मैं चला गया था ताकि तुम्हें मौका मिले अपने दिल से लड़ने का। ज़रलश्ता की आंखों में नमी आ गई। और अगर मैं हार गई हूं इस जंग में, राइम ने आस्तिकी से कहा, तो मैं जीत गया हूं, क्योंकि मेरी मोहब्बत कभी मुकाबला थी ही नहीं, इबादत थी। वो दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर ज़रलश्ता ने धीरे से पूछा, तुम वापस क्यों आए हो? राइम ने संजीदगी से कहा, इसलिए कि अब तुम्हारे बगैर रहना मुमकिन नहीं। मैंने बहुत सोचा, ये फासला सिर्फ दर्द बढ़ा रहा है। मैं चाहता हूं अब कोई फासला ना रहे, लेकिन अगर फिर वही लड़ाइयाँ, वही जिद्दें हुई तो? राइम ने मुस्कुरा कर कहा, तो हम लड़ेंगे, हंसेंगे और फिर एक दूसरे को मना लेंगे, मगर इस बार छोड़कर नहीं जाएंगे। ज़रलश्ता ने नजरें झुका ली। तुम्हें नहीं लगता मैंने भी बहुत बर्दाश्त किया? राइम ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, हाँ, और इसी बर्दाश्त ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। तुम्हारी खामोशी में भी जो प्यार था ना, वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। हवा के झोंके ने ज़रलश्ता के बाल चेहरे पर बिखेर दिए। राइम ने आहिस्ता से उसके चेहरे से बाल हटाए। अब मजीद कुछ मत कहो, बस यही लम्हा जिंदा रहने दो। ज़रलश्ता की आंखों से आंसू बह निकले। राइम, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करती रही, मगर जितना भूलना चाहा उतना ही तुम दिल में उतरते गए। शायद यह हार मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जीत है। राइम ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। तो मान लो कि ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हुई। हाँ, ये मोहब्बत अब मुकम्मल हो गई है। बारिश के चंद कतरे छत से गिरते हुए उनके चेहरों पर आ पड़े। फिजा में मिट्टी की खुशबू घुल गई। राइम ने आहिस्ता से ज़रलश्ता को अपने बाजुओं में ले लिया। अब इजाज़त है ना? हमेशा के लिए। दोनों खामोशी से एक दूसरे के करीब खड़े थे। बारिश बढ़ती गई, मगर उस लम्हे दुनिया जैसे थम गई थी। फिर ज़रलश्ता ने सर उठाकर कहा, राइम, अब कभी मत जाना। राइम ने धीरे से जवाब दिया, अब अगर जाऊंगा भी तो तुम्हारे दिल से नहीं। बारिश के शोर में उनकी हंसी गुम हो गई। मोहब्बत ने अपनी मंजिल पा ली थी और वक्त अब उनके लिए थम चुका था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।